Hello, good evening, students. In standard 11, today we will discuss normality. Okay? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलिटी क्या है. तो नॉर्मलिटी इज ऑल्सो अ मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. जैसे किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो क्या क्या है. मोलैलिटी है, मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शंस है, पार्ट्स पर मिलियन है. Similarly, normality is also a method to express the concentration of solution. But before discussing normality, we should have knowledge of equivalent weight. How can we calculate the equivalent weight? So, first, equivalent weight of an element equal to atomic weight divided by valency. For example, equivalent weight of calcium. You know that atomic weight of calcium is 40. And its valency is 2, therefore 40 divided by 2, that is equal to 20. So equivalent weight of calcium is 20. Now how can you calculate the equivalent weight of acid? Equivalent weight of acid equal to molecular weight of acid divided by basicity. Now the question is, what do you mean by basicity? See, basicity is the power of an acid to neutralize a base. It is power. And it is equal to number of replaceable hydrogen atom present in one molecule of acid. एक मॉलिक्यूल एसिड में जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होगा. रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम क्या हो गया? फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बेटा HCl ले लेते हैं मान लो, और HCl को सोडियम से रिएक्ट करवा देते हैं. ठीक है, डाइल्यूट HCl को सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं, क्या बन जाएगा? NaCl बनेगा और हाफ H2 बनेगा. यहां पे एक सोडियम एटम एक हाइड्रोजन एटम को यहां से रिप्लेस कर रहा है, तो बेसिसिटी ऑफ HCl इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ठीक है, बेसिसिटी ऑफ HCl इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. दूसरी बात हम लिखे नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड ऑन आयनाइजेशन. फॉर एग्जांपल, HCl on ionization will give H plus ion and Cl minus ion. How many H plus ion is given by one molecule of HCl? 1. Therefore, its basicity equal to 1. See, the acid having basicity 1 is known as monobasic acid. Monobasic acid. There are some example of monobasic acid like HCl, CH3COOH, acetic acid, HNO3, H3PO2. These are examples of monobasic acid. And in this case, the equivalent weight will be equal to the molecular weight because their basicity is 1. So equivalent weight will be equal to molecular weight. Like equivalent weight of HCl is equal to molecular weight of HCl. You know molecular weight of HCl will be equal to how much? 35.5 plus 1. That is equal to 36.5. This is molecular weight of HCl. Okay. So equivalent weight of HCl will be also equal to 36.5. But if you take H2SO4, you know when H2SO4 ionizes, it gives 2H plus ion plus SO4 2 minus ion. In this case, one molecule of H2SO4 gives 2 H plus ion. Therefore, basicity of H2SO4 equal to 2. So, it is called dibasic acid. So, H2SO4 oxalic acid. What is oxalic acid? COH. This is oxalic acid. Oxalic acid. H3PO3. Phosphorus acid. These are called dibasic acid. Dibasic acid because their basicity equal to 2. Therefore, these are called dibasic acid. In these cases, the equivalent weight equal to molecular weight divided by 2. Like equivalent weight of H2SO4 equal to molecular weight of H2SO4, that is 98 divided by 2, that is equal to 49. So equivalent weight of H2SO4 equal to 49. Is it clear? Now
S3PO4. S3PO4 on ionization will give 3H plus ion. Therefore, S3PO4 is called tribasic acid. S3PO4 is called tribasic acid because one molecule of S3PO4 gives 3H plus ion and 1 PO4 3 minus ion. So S3PO4 is an example of tribasic acid. It is tribasic acid, means its basicity equal to 3. Its basicity equal to 3. Therefore, equivalent weight of S3PO4 will be equal to molecular weight divided by 3. Is it clear? Now, come to the equivalent weight of base. How can we calculate the equivalent weight of base? Equivalent weight of base. It is equal to the molecular weight of base. Molecular weight of base divided by acidity. Now the question is, what do you mean by acidity? Acidity is a power of a base to neutralize an acid. It is a power of base to neutralize an acid, and it is equal to, acidity is equal to, it is equal to number of monobasic acid, number of monobasic acid like HCl, required to neutralize one molecule of बेस. एक मॉलिक्यूल बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना मोनोबेसिक एसिड चाहिए. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, NaOH बेस है बेटा. इसको अगर HCl से रिएक्शन करवा दो तो क्या दे देगा? NaCl प्लस H2O. ठीक है. एक मॉलिक्यूल NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक मॉलिक्यूल HCl चाहिए, इसलिए हम बोलेंगे बेसिसिटी ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. बेसिसिटी ऑफ NaOH इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. लेकिन यहीं पे अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, CaO प्लस क्या हो जाएगा? 2HCl gives CaCl2 plus H2. In this equation you can say one molecule of calcium oxide is neutralized by 2 molecules of HCl. Therefore, basicity of calcium oxide equal to 2. And therefore, equivalent weight of calcium oxide will be equal to, equivalent weight of calcium oxide will be equal to molecular weight of calcium oxide. Molecular weight of calcium oxide कितना हो जाएगा बेटा? 40 plus 16, 56 और divided by 2, that is equal to 28. ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट. ठीक है. अब इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट का कैसे निकालते हैं? एसिड का निकालने का तरीका पता हो गया, बेस का निकालने का तरीका पता हो गया, सॉल्ट का कैसे निकालेंगे? देखते हैं सॉल्ट का कैसे निकलेगा. देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट. देखो बेटा कैसे निकालेंगे. तो मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला वेट, आयनिक कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर वेट को क्या बोलेंगे? फॉर्मूला वेट. और यू मे से मॉलिक्यूलर वेट of salt divided by number of cation into charge on cation. Charge on cation. जरा सा देखते हैं. मान लो हम लोग को निकालना है इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम सल्फेट का, Al2SO4(3). मालूम है Al2SO4(3) किससे बना हुआ है? ये आयनाइज होगा तो क्या देगा? 2Al3 प्लस आयन प्लस 3SO4 2 माइनस आयन. ठीक है. तो इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम सल्फेट का अगर निकालना है हमको Al2SO4(3) का, तो क्या निकालेंगे? इसका फॉर्मूला वेट निकाल लेंगे. फॉर्मूला वेट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ केटायन
1 फॉर्मूला यूनिट जो है एल्युमिनियम सल्फेट का, उसमें 2 एल्युमिनियम आयन है, Al3+ आयन कैटायन है, और चार्ज इसके ऊपर में कितना है 3 है, तो 2 3 जा 6, तो फॉर्मूला वेट डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है ना। फॉर्मूला वेट उसी तरह से निकालेंगे जैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। जैसे एल्युमिनियम का अगर फॉर्मूला वेट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट निकालना है, फॉर्मूला वेट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3, बहुत आसान है। 2 एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 × 2 प्लस सल्फेट 3 × सल्फेट में एक सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 × 4, ये सभी को ऐड कर देंगे, जितना आ जाएगा वो क्या हो जाएगा फॉर्मूला। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बेस सॉल्ट। ठीक है। Now similarly you can also calculate the equivalent weight of oxidizing and reducing agent, that will be equal to molecular weight or formula weight divided by increase in oxidation number or decrease in oxidation number per mole, increase in oxidation number or decrease in oxidation number per mole, या number of electron lost or number of electron gained per mole। Okay, now we move to the नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलरिटी हम पढ़ाए थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का मौजूद रहता है उसको क्या बोलते हैं? मोलरिटी। यहां पे नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी क्या होगा बेटा? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute present in 1 liter of solution। लेकिन यहां पे एक वर्ड आ गया ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे ग्राम मॉलिक्यूल होता था, ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता था? व्हेन मॉलिक्यूलर वेट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल। उसी तरह से बेटा पहले हम लोग ये जान लें कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? when equivalent weight is expressed in gram it is called gram equivalent। it is called gram equivalent। ठीक है ना। when equivalent weight is expressed in gram it is called gram equivalent। जैसे mass of 1 gram equivalent of H2SO4। अभी तुरंत देखें कि इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का कितना आता था? 49, तो इट इज इक्वल टू कितना ग्राम? 49 ग्राम। इस तरह से मास ऑफ 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? 2 × 49 कितना हो जाएगा बेटा? 98 ग्राम। हम अगर पूछे कि 98 ग्राम H2SO4 में कितना ग्राम इक्विवेलेंट है H2SO4 का, तो 98 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 49, दैट इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू, आपको मालूम है क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन weight in gram divided by equivalent weight in gram। equivalent weight in gram, ठीक है। that is called number of gram equivalent। जैसे number of gram atom given weight in gram divided by atomic weight in gram। number of gram molecule given weight in gram divided by क्या बोल लिखते थे? molecular weight in gram। या आप लिखते थे number of moles। number of moles क्या होता था? गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास या मोलर वेट इन ग्राम पर मोल। ठीक है। और मोलर मास जैसे अगर मॉलिक्यूलर मास है तो यहां पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, मॉलिक्यूल्स के केस में, एटम्स के केस में एटॉमिक वेट हो जाता था। ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब
यहाँ पे नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, नॉर्मेलिटी में बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 milliliter of solution। 1 milliliter of solution। देखो यहां से जरा सा ध्यान देना, यहां से क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर मान लो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसका नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वैसे सॉल्यूशन को हम लोग नॉर्मल सॉल्यूशन बोलते हैं। नॉर्मल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसका नॉर्मलिटी क्या हो, 1। ठीक है, अब मान लो लेट WB ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन V मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। V मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना है, WB ग्राम सॉल्यूट मौजूद है। ठीक है, एंड EB इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। और आपको बोला है व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, यहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मतलब WB डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट EB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, मिलीलीटर में, तो V डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1000, यानी WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय EB इंटू V इन मिलीलीटर। WB क्या हो गया बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। इससे आप नॉर्मलिटी निकाल सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल में, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं लोग इसके। 1.26 gram of oxalic acid, formula H2C2O4 is dissolved in water to prepare 100 milliliter या 100 सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर से होगा, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, अच्छा एक चीज यहां H2C2O4.2H2O कर दो क्योंकि हाइड्रेटेड रहेगा। ठीक है, तो 1.26 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4.2H2O is dissolved in water to prepare 100 centimeter cube of solution. What is normality of solution? What is normality of solution? ये निकालना है बेटा। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मलिटी? सबसे पहले यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है 1.26 है, इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर 100 मिलीलीटर है, ये भी चलेगा। तो हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट
देखो मॉलिकुलर वेट कितना होगा बेटा, हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस कार्बन 12 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 18, 2 24 64 प्लस 36। इसको अगर हम ऐड करते हैं 6 4 10 4 16 6 4 10 4 14 2 16 के 6 हाथ में 4 1 3 4 4 4 6 4 10 12 126, ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया। और ऑक्जेलिक एसिड क्या है, अभी हम लोग पढ़े थे डाइबेसिक एसिड है, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड मॉलिक्यूलर वेट 126 डिवाइडेड बाई 2 यानी 53। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे लगा देते हैं। नॉर्मलिटी का क्या फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी इक्वल टू WB इंटू 1000, तो WB क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम 1.26 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट 53 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। कट जाएगा बेटा यहाँ, ये कितना आएगा 12.6 डिवाइडेड बाई 53, 12.6 डिवाइडेड बाई 53 कितना आ जाएगा, 12.6 को अगर 53 से डिवाइड कर देंगे तो 12.6 डिवाइडेड बाई 53, ठीक कितना हो जाएगा 12.6 डिवाइडेड बाई 53। देखो 2 3 6 53 नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 2 6 के बाद 63 है ना, यहाँ 63 सॉरी सॉरी 63, यहाँ 63 53 नहीं 63 हो गया, 63 होगा 126 डिवाइडेड बाई 2 2 6 12 2 3 6, ठीक है। अब इसको अगर निकालना है आपको तो ये क्या हो गया, 63 से डिवाइड कर देना है तो ये 0.2 आ जाएगा, 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यही ना हो जाएगा नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो वी कैन कैलकुलेट द नॉर्मलिटी इन दिस वे। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा। देखो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आपने लिखा WB इंटू 1000 डिवाइड बाई EB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ये ना लिखे। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या लिखे हम लोग, WB मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू V इन मिलीलीटर। WB क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अगर इसको डिवाइड कर दे तो यहां से WB कैंसिल, 1000 कैंसिल, V कैंसिल, क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू फैक्टर्स रिलेटिंग मॉलिक्यूलर वेट and equivalent weight, that is equal to normality। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू फैक्टर्स रिलेटिंग मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट। अगर एसिड है तो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इक्वल टू मोलरिटी इंटू ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, बेसिसिटी, बेस है तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एसिडिटी। ओके, थैंक यू।